हेलो पिला माने आज लास्ट क्लास में कही आज प्रॉब्लम करिया बोली से जति भी फॉर्मूला में पढ़े आसचे तापर किछि किछि प्रॉब्लम में डील करवा आज। ओके प्रथमे जो थिला फॉर्मूला रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रे रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रे हम गोटे टर्म पाइथिले मन पकाओ स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल तापर पढ़ीथिले डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देखो सिंबलाइज करते आर नॉट। लास्ट हम पढ़ी इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर या पर केमिति प्रॉब्लम आसे ताको डील करिवा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू स्कैटरिंग एंगल। ओके गोटे गोटे बर्तमान तो रिमाइंड कर दबा टिके फार्मूला तापरे न्यूमेरिकल करिवा। तो तिला स्कैटरिंग एंगल थीटा एरो गोटे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थिला मने पकाओ n proportional to 1 by 4th power of sin theta by 2. 4th power of sin theta by 2. That means theta and n inversely related. So we can say n2 by n1 means final number of scattered alpha particle, n1 initial number of scattered alpha particle equal to sin theta 1 by 2 ये 2 माने ये 1 आसीबो ये 1 माने 2 आसीबो उल्टी जीवो 4th power of sin theta 1 by 2 by 4th power of sin theta 2 by 2 थीटा 2 by 2 यार ऊपर बेस करी गोटे प्रॉब्लम करिवा। Suppose the question is there, the number of particles scattered at 60 degree is 100 per minute. 100 per minute in an alpha particle scattering experiment. Alpha particle scattering experiment using gold foil. Calculate the number of particles
calculate the number of particles per minute scattered at 90 degree. This is the question. The number of particles scattered at 60 degree is 100 per minute. What a minute re 100 ta particle scattered ho in an alpha particle scattering experiment using gold foil. Calculate the number of particles per minute scattered at 90 degree. पूरा यार ऊपर बेस करके अच्छी n2 by n1. This means final number of scattered alpha particle. n1 टाकिए initial number of scattered alpha particle. Theta 1 first scattering angle, theta 2 second scattering angle. Here data कौन कौन अच्छी? First अच्छी 60 degree, theta 1 given 60 degree. 60 degree केते जाऊँची ना 100 particle per minute. तने n1 है गला 100. मागी ची कना ना theta 2 दाइच, theta 2 90 degree. मागी ची n2. You have to find out n2. बस it put कर दिया. और we can have यही फॉर्मूला पर बेस कर लासीवा n2 into मागी ची n1 है गला 100 equal to fourth power of theta 1 60 by 2 by fourth power of sin 90 by 2. That means your n2 is equal to 100 into multiply hava. It have sin 30 60 by 2 30 by sin 45 whole to the power 4. That means ଆସିଯିବ n2 is equal to 100 into sin 30 केते half by 1 by root 2 half by 1 by root 2 तोड़ा केते हवा 1 by 2 by 1 by root 2 उल्टी जीवो केते जीवो root 2 by 2 root 2 by 2 तो एटा केते जीवो 1 by root 2 whole to the power 4. That means केते जीवो n2 is equal to 100 into 1 by root 2 रो स्क्वायर केते एटा जीवो 1 by 4 1 by root 2 रो स्क्वायर okay 1 by 2 रो square 1 by 4 that means n2 will be how much 25 per minute 25 per minute. So this 60 degree रे number of alpha particle थिला 100 per minute 90 degree कितना है वहाँ 25. Clear? Next now come to your distance of closest approach.
distance of closest approach or not. मन पड़ुची कोड़ा थिला एटम न्यूक्लियस जो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जाउथला द अल्फा पार्टिकल approaching directly towards the nucleus after certain time comes to rest. जो अल्फा पार्टिकल जाउथला किस टाइम पर रेस्ट हो जाउथला रिपेल इच अदर ना यार चार्ज पॉजिटिव प्लस जेडी अल्फा पार्टिकल चार्ज ला प्लस 2e रिपेल इच अदर रेस्ट होउथला तापरे रिट्रेस करथला बैक करथला ए जो डिस्टेंस ता रहिथिला एटा आर नॉट या पाई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कौन थिला ठीक रिमाइंड करो इन दिस केस हमें कहितले तो आर नॉट किए ना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हाट डज इट मीन द मिनिमम डिस्टेंस लेफ्ट बाय द अल्फा पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट द मिनिमम डिस्टेंस लेफ्ट केते रही गला बाय द अल्फा पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस मने पका हम पढुतले at or not kinetic energy of the alpha particle converted into your potential energy alpha particle ro kinetic energy रा convert होतला कोठी की potential energy की that means kinetic energy रो formula हला half mv square potential energy रो formula थिला मने पका 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r naught एटी q1 जगह पड़िबो ze q2 जगह पड़िबो 2e तो मल्टीप्लाई कले हबो 2ze स्क्वायर 2z स्क्वायर स्क्वायर तो फाइनली वी कैन हैव योर r naught is equal to r naught ता जदि एठी के आसीबो एटा तळकु जीवो so finally we can have r naught equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2z square by half mv square. This is the kinetic energy of the alpha particle. Okay, यहाँ पर बेस करी किसी प्रॉब्लम करियो देखो Good question. In a head-on collision, in a head-on collision between an alpha particle and a gold nucleus and a gold nucleus the distance of nearest approach माने r naught दे दीजिए the distance of nearest approach that means r naught कहते हैं ना 4 into 10 to the power minus 14 meter मागिची कणा ना calculate energy of alpha particle calculate energy of alpha particle okay दे दीची कणा ना एटॉमिक नंबर गोल्ड रो दीची कते 79 that's all क्वेश्चन या अछि इन ए हेड ऑन कोलिजन बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एंड ए गोल्ड न्यूक्लियस जरा कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जेम थिला नियरेस्ट अप्रोच डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच माने जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दे दीज आर नॉट एति कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल
रिलेशन कौन थिला वी हैव आर नॉट इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 जेड स्क्वायर बाय हाफ एम भि स्क्वायर ताले मागिछि कोन ना हाफ एम भि स्क्वायर एटा मागिछि दैट मीन्स वी कैन से योर हाफ एम भि स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 जेड स्क्वायर बाय आर नॉट जस्ट पुट द वैल्यू एटा मागिछि एटा ही मागिछि मारला यार गोटे कन्स्टांट वैल्यू अच्छी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 जेटा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रे पढ़ा जाउची इंटू 2 को 2 रहिला जेड इज गिवन 79 ई स्क्वायर ई रो वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन रो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 रो स्क्वायर बाय आर नॉट इज गिवन 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14 मीटर ये जहाँ बाहर ये टोटालटा जूल रे बाहर कोथरे बाहरला जूल रे बाहरला आमे जदि याकू इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते चाहिबा ताले कोन करबा ना नेक्स्ट स्टेप रे कोन कर दबो और इंप्लाई दैट योर हाफ एम भि स्क्वायर इज इक्वल टू एठी जहाँ बाहर टोटालटा जूल रे थिला बाय कर दबो 1.6 इंटू 10 माइनस 19 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हैं हमको एतिक डिवाइड करते पड़े इट बिकम्स जूल थिला डिवाइड कर देला हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटा कोन ए टोटलटा ए टोटल को जहाँ बाहर बाय दिस वन कम टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके नाउ कम टू आउट क्वेश्चन निवेली क्वेश्चन कौन था मन इन ए हेड ऑन कोलिजन between an alpha particle and a gold nucleus distance of closest approach टा दे देथिला एनर्जी मागी थिला अल्फा पार्टिकल रो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच रो फार्मूला या थिला मागिला हाफ एम स्क्वायर ये ऊपर गली ये तळको आसला सिंपल डाटा पुट कर दियो जहाँ बाहरला जूल रे ये भी रहिबो जदि ताको इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे खुलिबो ए टोटल को सॉल्व कला परे बाय टोटल बाय दिस वन काम खत्म एटा आनी के एटी पकले स्क्वायर कटि जिवो ओके नाउ कम टू आउट क्वेश्चन करवा ए क्लोजेस्ट अप्रोच ऊपर again आउट क्वेश्चन देखो an alpha particle of kinetic energy 10 mega electron volt is heading माने मूव करुच heading towards a stationary nucleus टा रेस्ट अच्छे stationary nucleus of atomic number 50 atomic number 50 Z दे दीजिए calculate the distance of closest approach calculate R naught distance of closest approach बस कौन दे दिला काइनेटिक एनर्जी E given हाफ एम भि स्क्वायर केते देछि 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट केते आसीबो 10 मेगा मीन्स 10 टू द पावर 6 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने केते 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 जूल ओके तो एटा आसी गला इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट हो गला जूल रे
नाउ हम काम कौन खोलिबा कि आर नॉट सिंपली आर नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z स्क्वायर बाय हाफ एम बी स्क्वायर यार वैल्यू केते आसीबो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 2 को 2 रहिला z आसीबो 50 स्क्वायर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 रो स्क्वायर बाय जो एनर्जी देची इलेक्ट्रॉन वोल्ट थिला ताको जूल कर देले बाय 10 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 एको सॉल्व करो एटा माइनस 13 आस जीवो ये पुन 10 अछि माइनस 12 बस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिला ना क्वेश्चन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी केतला 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन दिस केस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल करबा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोन करबा जूल करबा बिकॉज़ एटा डिस्टेंस हम कोथरे मारिबो मीटर रे ऐसा ही चलती ना तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल रे कन्वर्ट करबा नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन a beam of alpha particle okay next out question a beam of alpha particles of a velocity 2.1 into 10 to the power 7 meter per second is scattered by a gold foil having the atomic number 79. Find R naught, distance of closest approach. Distance of closest approach. एटा बाहर करो. आओ कौन डाटा दे दीजिए ना चार्ज पर मास रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या दीजिए ना 4.8 10 to 7 कूलम पर केजी ओके कूलम पर केजी now so this is the question a beam of alpha particle velocity is given is scattered by a gold foil having the atomic number 79 you have to find out the distance of closest approach here given a charge per mass ratio of alpha particle सही एका तो एका फॉर्मूला आसीबो as your r naught is equal to here 1/4 pi epsilon naught 2z स्क्वायर बाय हाफ एम बी स्क्वायर या कोई टिके एडजस्ट करके लिखले हबो 1 बाय केना मास दे ना e बाय m दे छी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z e बाय m into e बाय v स्क्वायर into हाफ ओके इंटू 2z स्क्वायर बाय हाफ एम स्क्वायर ना टूटा भी ऊपर को पढ़ो कम खत्म एडी ई बाय एम इज गिवन
दिस इज योर ई बाय एम ए भलटा पड़ जीवो ई रे वैल्यू 1.6 10 माइनस 19 v रे वैल्यू देइची दिस वन z देइची 79 बाहला ओके so this is all about your distance of closest approach okay next so question is that a beam of alpha particle velocity given scattered by a gold foil atomic number is given you have to find out the distance of closest approach data कौन देची ना चार्ज पर मास रेशियो तो यही फार्मूला जनरल फार्मूला रे में एडजस्ट कर देले E by m गोटे रहिला आ गोटे ई रहिला बाय v स्क्वायर आसिला 1/2 1/1/2 2 टेकिंग अपवर्ड ऊपर को पड़ेला एटा थिला 2 थिला एटा रहिला वैल्यू पुट करले आसिला ओके नाउ लास्ट वन इंपैक्ट पैरामीटर ओके ताको टिके रिमाइंड कर दबा नोट रे इंपैक्ट पैरामीटर केवल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टा देइची आ सत्य ही लिखिबा हमरो डेरिवेशन नाही सिलेबस रे स्टिल देन प्रॉब्लम करियो आगुरा कि बहुत से बुझी जा इंपैक्ट पैरामीटर टा कोन त मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एमती काहेकी आसुची impact parameter वैल्यू में कितने इतने बी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कौन थिला b इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर cot theta by 2 by half mv square okay so here एटा कहला इंपैक्ट पैरामीटर इंपैक्ट माने कौन इंपैक्ट पकेबा प्रभाव पकेबा हैला तो हियर वी कैन हैव जतो b 0 रहइबो त cot थीटा बटे केतला 0 दैट मींस cot 90 और थीटा बाय 2 केतला 90 थीटा केतला 180 तो इंपैक्ट पैरामीटर टा 0 हबो स्कैटरिंग एंगल टा केते हिजबो 180 ग्रेटर डिफ्लेक्शन एटाला इंपैक्ट पैरामीटर कांसेप्ट इंपैक्ट पैरामीटर तो इट विल हैव सम इंपैक्ट किछि प्रभाव पकेबो कहा ऊपर ना स्कैटरिंग एंगल ऊपर पकेबो थीटा ऊपर पकेबो केमति पकेबो नेट इंपैक्ट पैरामीटर कमिले स्कैटरिंग एंगल टा बढ़िबो ओके नाउ ए डेरिवेशन टा केमति आसिला ए मैथमेटिकल डेरिवेशन टा केमति आसिला हम न्यूमेरिकली हम हमर थ्योरी रे खाली एति के लिखिबा ओके बट डेरिवेशन टा केमति आसिला भी टिके चेक करो केतन हेलानी कोई अदंड now the nucleus एटा टारगेट न्यूक्लियस
एटा सेंट्रल लाइन मनकर अल्फा पार्टिकल टा एम जाउथला एटू स्कैटर हला स्कैटर हम नॉट एट फोर्स पड़ुछ नंतर स्कैटरिंग कहीं गला एटा न्यूक्लियस एटा किए आसुची ना अल्फा पार्टिकल जाउची ए न्यूक्लियस टा सपोज या ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स पकोच बड़ा फोर्स पड़ुछ न्यूक्लियस रे चार्ज केते हैं प्लस जेडी अल्फा पार्टिकल केते हैं प्लस 2e ए अल्फा पार्टिकल जतरा एटी के आस जीव ए जगह रे ये भी पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज इट्स ए कूलम्स फोर्स फॉर द डायरेक्शन इनचार्ज बट अल्फा पार्टिकल टा जाई था एमिट जाई चे एमिट दिस इज द स्कैटरिंग एंगल थीटा माने करो तर इनिशियल मोमेंटम टा मैंने P1 कहार अल्फा पार्टिकल फाइनल मोमेंटम कितने ले P2 तो चेंज इन मोमेंटम कितना है वो लेट दिस बी डेल्टा P केंदे हला आई एटा P1 रो डायरेक्शन एटा P2 रो डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम P2 minus P1 that is equal to P2 plus of minus P1 P1 जदि एपट होता है तो माइनस P1 क्या आड़े कि याड़ को एटा हम माइनस P1 तो P2 एटा माइनस P1 एटा रिजल्टेंट एटा हम कि रिजल्टेंट ओके क्लियर नेक्स्ट लेट ए एंगल को मैंने ले फाई एटा को मैंने जे फाई एपटे फोर्स रे को कंपोनेंट रहइबो एंगल जहा को नागिति ओटा कॉस कंपोनेंट तो एटा है जीवो एफ कॉस फाई एफ कॉस फाई क्लियर इंपैक्ट पैरामीटर कोटा ना इटा ए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बा इटा इटा एटा ला इंपैक्ट पैरामीटर का कौन एटा ना इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन the velocity vector and the central line between the direction of approach and the central line now ए जो एंगल टा एटा और एटा एंगल कहते हैं एटा ही जीवो पाई माइनस थीटा बाय 2 एटा भी हम पाई माइनस थीटा बाय 2 हाँ केमती है ना आटिकार आम करुले मनकर P1 P1 P2 चेंज इन मोमेंटम कोड़ा आस्तला डेल P एटा थीटा तो एटा केता हबो तो एटा में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दबा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दबा एटा 90 डिग्री आस जीवो ए टोटल टा थीटा तने एटा केते हे जीवो एटा थीटा बाय 2 एटा 90 एटा थीटा बाय 2
तो ए एंगल केते हम कि 90 माइनस थीटा बाय 2 कहवा जहां पाई माइनस थीटा बाय 2 कैसे है पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 क्लियर एटा भी से ओके दैट्स व्हाई ए एंगल केते आसला पाई माइनस थीटा बाय 2 एटा भी से पाई माइनस थीटा बाय 2 बा याको मैं एमिति भी करि परिबा एटा माने कर अछि एटा अछि P1 एटा अछि P2 एटा P1 एमिति जाई थांता P2 एमि जाईची एटा हला चेंज इन मोमेंटम एटा P1 एटा P2 एटा हला चेंज इन मोमेंटम अगेन एटा हला थीटा बिकॉज देखो ना एटा P2 जाईची एटा P1 जाई थांता एटा थीटा तो एटा डेल्टा P अगेन एटा केता हो पुणी एटा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एटा है गला थीटा बाय 2 ओके एटा है गला थीटा बाय 2 एटा 90 तो ए एंगल केता आसीबो ना पाई माइनस थीटा बाय 2 पाई माइनस थीटा बाय 2 सेकंड शिफ्ट ये जहां से ना हमको चेंज इन मोमेंटम खुलिवार अछि जेहेतु रोडे हेड ऑन कॉलिजन बा ए जो कॉलिजन कहा जाए इलास्टिक कॉलिजन एटी मोमेंटम कंजर्व रहइबो कहार अल्फा पार्टिकल दैट मींस वी कैन से मोमेंटम रो मैग्नीट्यूड ता समान रहइबो mv mv ऊपर आसना mv डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1 और डेल्टा P रो मैग्नीट्यूड है जीवो सब्ट्रैक्शन रूल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा 2 P1 P2 cos थीटा और सिंपली वी कैन से यार डेल्टा P इक्वल टू P1 भी mv P2 भी mv इतने mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर 2 mv रो स्क्वायर माइनस ab mv अगेन माइनस 2 mv रो स्क्वायर cos थीटा रो रूट ओवर डेल्टा P इक्वल टू mv स्क्वायर कॉमन गला mv पड़े आसला 1 माइनस cos थीटा इंटू 2 ओके और अगेन हियर डेल्टा P इक्वल टू mv को mv रहिला 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 2 और फाइनली वी कैन हैव हियर डेल्टा P इक्वल टू 2 root over 2 mv sin theta by 2 change in momentum of the alpha particle 2 mv sin theta by 2 ओके एति क्लियर माने अल्फा पार्टिकल जाउथला एपटे इनिशियल मोमेंटम P1 गला एपटे P2 आमे चेंज इन मोमेंटम काढिलु चेंज इन मोमेंटम केते आसला 2 mv sin theta by 2 now ये बहुत की as dp is equal to f dt f dt rate of change of momentum f is equal to dp by dt माने पड़छ ना सेटो एठी f रो को कंपोनेंट जाईची along delta p f cos theta sorry f cos phi that means your dp is equal to f cos phi
dt, or your delta p is equal to integration over f cos phi dt, or your delta p is equal to f taking outside constant, integration over cos phi dt by d phi into d phi, पूरा डिवाइड कली मल्टीप्लाई कली, लिमिट डी फाइ एटा फाइ फाइ आम लिमिट कहार नबा फाइर फाइटा कहा गए ट्रायंगल फोर्स जो कूलम्स फोर्स काम कर न्यूक्लियस आउ अल्फा पार्टिकल आउ के ना चेंज इन मोमेंटम मोमेंटम भितर एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम तो एमती है पारे अल्फा पार्टिकल टा एपटे भी जाई पारे बा स्ट्रेट भी जाई पारे एपटे भी जाई पारे बा एपटे भी जाई पारे कोथले आउट क्या करू इंपैक्ट पैरामीटर जते कमीबो डिफ्लेक्शन जते बढ़ी जीवो स्कैटरिंग एंगल बढ़ी जीवो मे बी 180 बैक कर जाई पारे बा स्ट्रेट जदी इंपैक्ट पैरामीटर को बढ़े दबा ये अनडेविएट हे पळेबो स्ट्रेट तो लिमिट टा कोन नि जीवो ना हमर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम डायरेक्शन को देखो इनिशियल मोमेंटम सांगरे फोर्स रो एंगल केते अछि चेंज इन मोमेंटम एंगल केते अछि एटा केते अछि एटा दिस द इनिशियल वैल्यू क्लॉकवाइज अछि माइनस अपर लिमिट कोटा हबो फाइनल मोमेंटम एटा एंटी क्लॉकवाइज एटा प्लस क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज प्लस एटा अपर लिमिट एटा लोअर लिमिट बिकॉज इनिशियल मोमेंट सहित डायरेक्शन केते अछि एटा तो लिमिट पड़ीगला पाई माइनस थीटा बाय 2 माइनस वैल्यू अपर लिमिट केते आसीबो पाई माइनस थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 एटा मोर नाही सिलेबस रे नाही केवल प्रॉब्लम करिया पई फार्मूला दरकार आ तो डेरिवेशन टी बुझता कोड आसी नाउ कम टू del p is equal to f रे वैल्यू केते नक्के कांस्टेंट q1 q2 q1 हला zd q2 हला 2e तने केते हबो 2 zd स्क्वायर बाय r स्क्वायर रहिला इंटीग्रेशन रहिला एठी cos phi dt by d phi रहिला लिमिट जहां थिला से रो माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा बाय 2 इंटू पाई माइनस थीटा बाय 2 ओके अगेन or here delta p equal to sorry এটা থাও এটা এটা কাম করো edge angular momentum is constant conserve होची angular momentum এই কেস রে that means mvb is equal to m omega r square it bb distance mvr bb distance impact parameter okay again v जागर जदि पड़िबा r omega तने mvr v जागर r omega that means mr square omega mr square omega r टा के ना डिस्टेंस एटा है पारे ऊपर को है पारे किछ भी पारे r टा हला डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल एटा अछि r एटा अल्फा पार्टिकल एटा अछि r एटा बा तळु को है पारे किछ भी और हियर
ओमेगा इज इक्वल टू केते हबो ना VB by r square. Omega is the angular velocity, rate of change of angular displacement, that is d phi by dt. बुझे लग रहे d phi by dt. That means dt by d phi कितना है वो r square by VB. एटा जो dt by d phi अच्छी ता वैल्यू केते पड़िबो r square by VB. again that is constant taking outside. तो फाइनल एम्पायर केते आस जीवो यार डेल्टा p इक्वल टू k 2z स्क्वायर बाय r स्क्वायर. एठी जो रहिला dt by d phi वैल्यू केते पड़ी गला ना r square by VB taking outside, r square by VB taking outside रही जीवो केवल cos phi d phi, cos phi d phi. इंटीग्रेशन ओवर cos phi d phi. लिमिट जहां थिला से माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा बाय 2 टू प्लस ऑफ पाई माइनस थीटा बाय 2. हम खत्म. हियर डेल्टा पी वैल्यू आम ऑलरेडी पाई थिले केते ना 2mv sin थीटा बाय 2 इक्वल टू r स्क्वायर कटिबो k 2z स्क्वायर बाय VB. r स्क्वायर कटला यार इंटीग्रल वैल्यू केते cos phi d phi रो लिमिट पकेले प्रॉपर लिमिट पकेले आस जीवो 2 cos थीटा बाय 2. याको सॉल्व करिवो इंटीग्रल वैल्यूटा लिमिट पकेकी 2 cos थीटा बाय 2. नाउ 2 कटिला केते हबो mv into VB. that means mv square b sin theta by 2 by k 2z स्क्वायर एटा से पर डिवाइड हला इज इक्वल टू cos थीटा बाय 2. काम खत्म. नंबर ऐसे लगते हैं b इज इक्वल टू के टारपुट को जीव दैट मीन्स 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एडी हम पाखरा अछि हाफ एम v स्क्वायर एनर्जी हला 1 बाय 4 पाई आरपुट गला z स्क्वायर टारपुट को जीव z स्क्वायर cos थीटा बाय 2 बाय sin थीटा बाय 2 cot थीटा बाय 2 हाफ एम v स्क्वायर माने एनर्जी तळु को आसीबो. दैट्स दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंपैक्ट पैरामीटर डेरिवेशन. जेटा कि थ्योरी पे दरकार ना ही केवल न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दरकार. तो जो जानिया को चाहछो एमती देखि पारो. आम काम हला या ऊपर टार्गेट करके हमें न्यूमेरिकल करवा. गोटे क्वेश्चन लिख भाई क्वेश्चन तो क्वेश्चन होची कैलकुलेट द इम्पैक्ट पैरामीटर calculate the B impact parameter of a 5 mega electron volt particle scattered by
scattered by 90 degree when it approaches a gold nucleus. When it approaches a gold nucleus, तो indirectly Z क्या दे देला 79, बस थीटा क्या देला 90. ओके, मागिला बी एनर्जी दे दीजिए. ई कितने 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इंटू 10 to the power 6, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इंटू 10 to the power 6 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल कर देले एटा ई रे वैल्यू पाई गलो. ए ई रे वैल्यू आनी केटी पड़िबो, यार वैल्यू 9 इंटू 10 to the power 9, जेड देइची 79, ई रे वैल्यू जानिचु, थीटा इज गिवन 90, cot 45, cot 45 1, काम खत्म. ओके दबो बी बाहर जी. ओके, so this is all about your scattering angle with ऊपर कले, तापर distance of closest approach ऊपर कले, तापर impact parameter ऊपर कले. कुछ ना बुझियाला ना, calculate the impact parameter B. कहारा यहाँ पे 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एनर्जी 5 रहिला मेगा 10 to the 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल करिवो 1.6 into 10 to the minus 19, scattered by 90 degree, थीटा दला 90 degree. When it approaches a gold nucleus, माने डायरेक्टली कला Z टाला 79. फार्मूला दा आगरे अछि B is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Z square cot theta by 2. Theta is 90. 90 by 2 45, cot 45 1. E रे वैल्यू जानिचु, Z ला 79, E this one पुट करो, वैल्यू इज देयर. ओके, आज पे यति की नेक्स्ट क्लास रे हम जो बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम थिला तार जति एक्सप्रेशन पाइथिले ता ऊपर न्यूमेरिकल करबा. तो देखि कि भल किना आस्तिबो सब किछि नोट रे अछि. ओके, एनी डाउट इम्पैक्ट पैरामीटर ऊपर दरकार नै डेरिवेशन तथा चाहिए तुम देखि पारो, कॉन्टैक्ट विथ मी.